So we're talking about the emergencies in dental practice. So basically all these emergencies that you can deal with in any hospital setting, वो क्या क्या हो सकते हैं? You can see syncope, unconscious patient, hypotension. Hypotension क्या होता है? Decrease in the BP. Syncope is loss of consciousness. तो unconsciousness क्या होता है फिर? Syncope is sudden loss of consciousness and then immediate recovery. Then hypoglycemia. क्या हुआ? Fall in blood sugar level. What is the normal blood sugar level? 82, 110. So when we call it hypoglycemia, less than 50 with symptoms of hypoglycemia, which are tremor, tachycardia, sweating, palpitation. These are all sympathetic symptoms. Sympathetic system tries to overcome or tries to maintain the homeostasis because sympathetic hormones like adrenaline, noradrenaline, they cause tachycardia, they cause increase in the blood sugar, so they try to maintain the homeostasis. Then we can have seizures as an emergency, respiratory emergency like airway obstruction, asthma, cardiovascular like angina pectoris, myocardial infarction, drug-related emergencies, some overdose, allergies. These are the most common emergencies that you can encounter. Please close the gate. So we'll discuss briefly about them and their management. So first is syncope. Sudden loss of consciousness and muscle tone. Patient may fall because of the loss of muscle tone and sudden recovery. That is syncope. Causes क्या हो सकती है इसकी? Hypoxia. Hypoxia is decreased oxygen level in the blood. So it can be caused by can be anemia. ठीक है, anemia होगा तो hemoglobin कम होगा, oxygen carrying capacity कम हो जाएगी, that can cause hypoxia. It could be respiratory obstruction या asthma है, that can cause hypoxia. ठीक है. Hypoglycemia can cause syncope. blood sugar कम होगा, syncope हो सकता है. Epilepsy. Some epilepsy causes syncope. देखा epilepsy में patient may fall on the ground, loss of the tone, loss of consciousness, and they can have involuntary movements. ठीक है, tonic-clonic movements. Then serious causes like heart attack, embolism, that can obstruct the blood supply to the brain. ठीक है, heart attack हो गया तो हार्ट फंक्शन नहीं करेगा, ब्लड पंप नहीं करेगा ब्रेन को. एम्बोलिज्म हो गया, कोई क्लॉट आया और वो एम्बोलाइज हो गया, मान लिया हार्ट में कोई क्लॉट है, वो आगे एम्बोलाइज होके सीवीएस में चला गया, वहां पे ब्लॉकेज कर दिया. दैट कैन कॉज syncope. Aortic stenosis, arrhythmia, tachycardia, these all can cause syncope. Vascular and causes, vasovagal causes, common faint. देखा पिक्चरों में वो कोई न्यूज आती है और बंदा गिर जाता है, I mean bad news, that is vasovagal attack. ठीक है, it stimulated the vagus center that causes bradycardia, hypotension, and patient can have momentary syncope with recovery.
Hypercalcemia can cause cough, sneeze, micturition, that can also cause syncope. ठीक है, अगर excessive cough है, that can also cause syncope. Excessive sneezing, that can also cause syncope, because these things decrease the BP. Symptoms क्या होंगे? Irregular jerky breathing, pupil can get dilated, usually not, but can. अगर there is blockage in the vessel, blockage in the blood vessel by embolism, then it can also cause the dilated pupils or breathing difficulty, breathing irregular breathing. Management क्या करेंगे? Whenever we are managing any patient, most important thing is ABCD approach. A means airway. We'll first check the airway. Airway patent है कि नहीं है, ठीक है? कहीं कोई ट्रॉमा का पेशेंट है, यहाँ पे उसका मैंडिबल टूटा हुआ है, अंदर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है या ट्रेकिया डैमेज है, तो एयरवे इज नॉट पेटेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक द एयरवे. देन विल टॉक अबाउट द ब्रीदिंग. ब्रीदिंग कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ब्रीदिंग है कि नहीं है, सैचुरेशन कितना आ रहा है पेशेंट का. दैट इज द कॉमन मैनेजमेंट प्लान ऑफ एनी पेशेंट, ठीक है. देन विल चेक द सी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, बीपी पल्स इज फाइन और नॉट. Then accordingly we'll manage the patient. ठीक है, बीपी कम है तो we'll give the fluids. एयरवे ऑब्स्ट्रक्टेड है तो एयरवे क्लियर करेंगे. ब्रीदिंग इरेगुलर है, accordingly we'll manage the patient. सीजर, सीजर क्या होता है? सीजर एंड एपिलेप्सी. अगर सिंगल एपिसोड है, then we call it scissor. If there are multiple episodes and it is established, we call it epilepsy. ठीक है? तो सीजर आया तो सीजर इज द डिसऑर्डर जो हुआ है. पेशेंट फॉल हो गया, अनकॉन्शियस हो गया, देयर इज इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, टोनिक क्लोनिक मूवमेंट, इट इज सीजर. ये एपिसोड जो हुआ. बट इफ देयर आर मल्टीपल एपिसोड्स, वी कॉल इट एपिलेप्सी. ठीक है. मैनेजमेंट क्या करेंगे? पुट द पेशेंट सुपाइन ऑन फ्लैट सर्विसेज. वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेज द सीन. पेशेंट शुड बी एट अ सेफ प्लेस. मान लीजिए सीजर कहीं रोड पे आ गया, रोड साइड आ गया, यू हैव टू प्लस सिक्योर द पेशेंट. सिक्योर him or her to a safe place, जहां पे उसको कोई डैमेज नहीं है. रोड के बीच में सीजर आ रहा है तो आप क्या करोगे? पहले एयरवे सिक्योर करोगे, पहले उसको सिक्योर करोगे? पहले उसको सिक्योर करोगे आप. सो फर्स्ट यू हैव टू सिक्योर द सीन, देन यू हैव टू लूजन एनी टाइट क्लोथिंग, अवॉइड रीस्ट्रेनिंग द पेशेंट. उसको बांधना नहीं है आपको जब सीजर आ रहा है. इट कैन कॉज डैमेज टू द पेशेंट. उसको इंजरी हो सकती है अगर आप रीस्ट्रेन करोगे. रीस्ट्रेन नहीं करना है उसको. क्या देंगे आप? इनिशियल डायजेपाम दोगे. पढ़ा हुआ है ना आपने, स्टेटस एपिलेप्टिकस हो गया ना. सो वी गिव द डायजेपाम, वी गिव phenobarbital. डायजेपाम इज द फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट. देन वी गिव phenobarbital, वी कैन गिव carbamazepine, phenytoin. देन एट द लास्ट इफ इट इज नॉट कंट्रोल्ड, देन वी गिव मसल रिलैक्सेंट्स. ठीक है. हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर लेस देन 50 अगर है, पेशेंट कैन हैव वीकनेस, डिजीनेस, ट्रेमर्स, टैकीकार्डिया, सारे सिंपैथेटिक सिम्टम्स जो होते हैं. स्वेटिंग, वी चेक द शुगर, शुगर इज लेस देन 50. क्या करेंगे? पेशेंट कॉन्शियस है, ओरिएंटेड है, तो वी कैन गिव द ओरल ग्लूकोज. ठीक है, ग्लूकॉन डी मिला के दे सकते हो उसको. एनी शुगरी ड्रिंक दे सकते हो, जूस दे सकते हो उसको. दैट इज if the patient is oriented. अगर नहीं है तो we won't give the oral medication, we won't give the oral treatment because patient can aspirate.
अगर हम ओरली ग्लूकोज दे देंगे, पेशेंट बेहोश पड़ा हुआ है, तो उसके लंग्स में चला जाएगा, एस्पिरेट हो जाएगा. पेशेंट शुड बी कॉन्शियस. अदरवाइज वी कैन गिव IV dextrose. We can give 50% dextrose आता है, we can give it 100 ml 50% dextrose. We can give it. And एक से कंट्रोल नहीं हुआ तो we can give one more. फिर भी कंट्रोल नहीं हुआ, we can give glucagon. ठीक है, glucagon 1 milligram IM. It releases the glucose in the body. Glucagon is a glucogenic hormone. Then respiratory emergencies क्या होता है? एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया. कैसे हो गया? ट्रॉमा की वजह से हो सकता है. कोई ट्रॉमा हो गया, मैंडिबल टूट गया, ट्रैकिया डैमेज हो गया ट्रॉमा से. दीज आर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन. और क्या हो सकता है? एस्थमा. एस्थमा इज ऑल्सो रेस्पिरेटरी इमरजेंसी. स्टेटस एस्थमेटिकस पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने? स्टेटस एस्थमेटिकस, वेरी सीवियर अस्थमा. पेशेंट इज नॉट एबल टू स्पीक इवन. पेशेंट इज नॉट स्पीकिंग. पेशेंट इज नॉट सेइंग एनीथिंग. देयर इज नो चेस्ट साउंड इवन. अस्थमा में वीजिंग होती है. ठीक है, सीवियर अस्थमा में वीजिंग और तेज हो जाती है. अस्थमेटिकस में देयर इज नो साउंड, चेस्ट इज डल, उसकी ब्रीदिंग स्टॉप हो गई है, इतना सीवियर अस्थमा है, वो सांस ले ही नहीं पा रहा है. सो पेशेंट कैन बिकम ब्लू. ठीक है, यू कैन फाइंड द साइनोसिस इन द पेशेंट, दैट इज एन इमरजेंसी. ठीक है, हाइपोक्सिया हो गया, हाइपोक्सिया से साइनोसिस हो गई, देयर इज नो चेस्ट साउंड, इट इज एन इमरजेंसी. इफ नीडेड वी हैव टू इंट्यूबेट द पेशेंट. ठीक है, देन we have angina and myocardial infarction. What is difference between them? उसमें चेस्ट पेन नहीं होता. इन्फेक्शन में चेस्ट पेन नहीं होता. How will distinguish between them? कैसे पता पड़ेगा आपको कि एंजाइना है कि इन्फेक्शन है? एंजाइना इज रिवर्सिबल. देयर इज अ ब्लॉकेज इन द वेसल. वो ब्लॉकेज परमानेंट नहीं है, पूरा कंप्लीट ब्लॉकेज नहीं है. व्हेनेवर देयर इज 80% और मोर देन 80% ब्लॉकेज, देन वी कैन हैव इन्फेक्शन. उसके पहले अगर उससे कम है अगर थोड़ा सा ब्लॉकेज, तो whenever the patient is doing excessive activity, ज़्यादा चल लिया, ज़्यादा घूम लिया, तो he or she can have chest pain because heart is not able to pump the extra blood supply. तो उसको एक्स्ट्रा वर्क की जरूरत पड़ी तो एक्स्ट्रा काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि उतना ब्लड जा नहीं पा रहा है, और नॉर्मल काम तो कर रहा है. तो whenever the patient is exerting, जब एक्सर्शन होगा उसको, उस टाइम चेस्ट पेन होगा, और जब वो रुक जाएगा चेस्ट पेन खत्म. इन्फेक्शन इज परमानेंट डैमेज. अगर ब्लॉकेज ज्यादा हो गया, पेशेंट को चेस्ट पेन होगा, चेस्ट पेन रिलीव नहीं होगा, रेस्ट में भी होगा, चलने पे भी होगा, वो रिलीव नहीं होगा. दैट इज परमानेंट ब्लॉकेज, कंप्लीट ब्लॉकेज. कंप्लीट इज मोर देन 80%, वी कॉल इट कंप्लीट ब्लॉकेज. दैट इज इन्फेक्शन. सो ब्लड सप्लाई अगर नहीं होगी, पेशेंट बैठा हुआ है तब भी नहीं होगी ब्लड सप्लाई पूरी, चल रहा है तब भी नहीं होगी ब्लड सप्लाई पूरी, so there is myocardial damage. ब्लड सप्लाई मिल ही नहीं रही हार्ट को, that is irreversible. So heart muscle may be infarcted. Infarction is irreversible damage. And angina, there is no damage of the heart muscle. ठीक है, क्या करेंगे एंजाइना में? नाइट्रोग्लिसरीन दे सकते हैं. इन्फेक्शन में क्या देंगे? इन्फेक्शन हो गया, हार्ट मसल डैमेज हो गई, चेस्ट पेन हो रहा है, कंटिन्यूस हो रहा है,
क्या देंगे? नाइट्रोग्लिसरीन देंगे. We can give antiplatelet agents as a loading dose. Aspirin, clopidogrel, beta blocker can be given to reduce the myocardial demand, oxygen demand. ठीक है? And definitive treatment is stenting, PTCA that we call it. We insert a stent into the vessel and we open the blockage. And if the stenting is not available, if the patient is in periphery, जहाँ पे stenting नहीं होती है, we can also thrombolize the patient, thrombolize the clot with the help of thrombolytic drugs like streptokinase, alteplase. Angina pectoris हो गया. एलर्जी रिएक्शन कौन से होते हैं? सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस. एनाफाइलेक्टिक शॉक. हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एलर्जिक रिएक्शन? हाउ कम इट्स एन इमरजेंसी? Symptoms are very severe and if not treated on an urgent basis, then patient may die of it. एलर्जी में क्या होगा? एलर्जी कुछ भी हो सकती है. This is also allergic reaction, but this is a very severe reaction. If you can have the sneezing is also an allergic reaction. If you have watering eyes, itching in the body, that is also an allergic reaction. But how it makes this, what makes this anaphylactic shock different? Patient can have hypertension, BP कम हो सकता है, ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है, सांस नहीं आएगा उसको. So this is an emergency. Laryngospasm हो सकता है, laryngeal swelling हो सकती है, larynx जो है पूरा swell हो सकता है, एयरवे वहां से भी ब्लॉक हो जाएगी. So increase secretions also. So mainly airway अगर ब्लॉक होगी, this is a emergency because oxygen नहीं पहुंचेगी, patient can have hypoxia and immediate death. किस चीज से हो सकती है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन? कौन से होते हैं मोस्ट कॉमन एलर्जेंस? पोलन से एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन नहीं होता. पोलन से एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है. एनाफाइलेक्टिक शॉक में अगर पेशेंट जा रहा है तो क्या हो सकता है? पीनट्स, बी स्टिंग, हाँ, पेनिसिलिन. पेनिसिलिन से यूजुअली हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन होता है. एनाफाइलेक्टिक शॉक हो सकता है. ठीक है. सो दिस इज एन इमरजेंसी. क्या देंगे? एड्रेनलिन. कितना देंगे? हाँ. सो दिस इज ऑल अबाउट द इमरजेंसीज. कौन कौन सी हुई? एंजाइना, इंफाक्शन, सीजर्स, हाइपोग्लाइसीमिया एंड asthma, anaphylactic reaction, airway obstruction can be due to trauma. ठीक है. ट्रॉमा और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ब्रोंकियल. एस्थमा से ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन हो सकता है, फुल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा. इट कैन बी ड्यू टू सम फूड पार्टिकल के अंदर फंस जाता है. आप कुछ खा रहे हो, ठीक है, लोगों को चोकिंग हो जाती है, दैट कुड बी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन. उसके लिए व्हाट वी डू?
Heimlich maneuver. First of all, we can tell the patient, उसकी पीठ पे मारेंगे क्यों निकल जाए, वरना we can do Heimlich maneuver. Heimlich maneuver is पीछे से आपको पकड़ना है पेशेंट को, ठीक है, यहाँ पे हाथ रखना है और उसको पुल करना है, तो अंदर से पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होगा एंड द ऑब्स्ट्रक्शन कैन बी रिलीव. Heimlich maneuver. ठीक है. इट्स ऑल अबाउट द इमरजेंसीज. पूछना किसी को कुछ? ठीक है. अटेंडेंस होगी थी आपकी? ठीक है. ओके, थैंक यू.